First stanza of this poem is: in the fearful silence of the forest, in the fearful silence of the forest, I hear the sound of paws of a careful bulbul. I hear the sound of paws of a careful bulbul out in the night shaking the feathers, out in the night shaking the feathers on his head to find food for its four little ones hungry in the nest. Hungry in the nest. So I will explain these lines for you. This is the first stanza of the poem, and explanation is like this. In these lines, the poet imagines the poet imagines a forest gripped by the fearful silence, where she happens to hear the sound of a careful bulbul's paws. Is it on your screen? No, sir. Okay. So I have shared the screen with you. Now I think it's on your screen. Yes, sir. Yes, sir. No. So the explanation is like this: that in these lines, that the in this, or we can say in this stanza, the poet imagines a forest. That means an image gets created in our mind, because poet says that in the fearful silence of the forest, so an image gets created. What sort of image? That there is a forest and there is no noise in that forest, there is silence in that forest, and the silent and the forest is gripped by the fearful silence. एक होती है simple सी silence, but here it has been imagined as the fearful silence. Fearful means डरावना. कभी कोई खामोशी जो है ना वो दिल में डर पैदा कर देती है, बिल्कुल. दैट्स कॉल्ड द fearful silence, where she happens to hear the sound of a careful bulbul's paws. The only sound the poet heard is bulbul's the sound of bulbul's paws. एक ही आवाज वो उस सुनसान जंगल में सुन रहा है. वो जो बुलबुल होता है उसके पास की चलते चलते जो आवाज आ रही है वो सुन रहा है. The bulbul had left in the night, and the bulbul had left in the night. Why he had left in the night? To search for food for her four little ones. He has left the night. He has left in the night. What he has left? He has left his nest. He has left its nest. Why he has left its nest? Because it is in search of food. And why he need food? Why he needs food? Because he has four uh, children's. I can see he has four little ones in its nest. He has four children, because the little ones of the bulbul are in the nest and they are very hungry in the nest. That's why the bulbul is out. इसीलिए वो बाहर चला गया है बुलबुल. As mother, because bulbul is a mother, the bulbul could not bear to see her little ones hungry. And bulbul cannot bear. How he can tolerate that he will sit in the she will sit in the nest and her little ones would remain hungry? No mother can tolerate it. कोई भी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उसके बच्चे जो है वो भूखे रहे और वो खुद कहाँ पे बैठी रहे, अपनी घर में. Therefore, she had left to get food for her little ones. That's why she had left the nest. She had left her home to get the food for four little ones. So, in this stanza, we came to know that the bulbul has four little ones. Second stanza:
moving slowly, afraid. Moving slowly, afraid, its ears pricked to pick some sound somewhere with the grain in its beak. Moving slowly, afraid, its ear pricked to pick some sound somewhere with the grain in its beak. With the grain in its beak, it hastens to the nest. Its twittering fledglings do not know the forest is in the throes of fear. They continue chirping. The bulbul trembles, moves with its head raised, alert all ears. Okay, again. So, uh, moving slowly. The poet says that the bulbul is moving slowly and afraid, and also the bulbul is she's afraid of something. That means something has happened in the jungle, or she has seen something in the jungle. That's why the bulbul is afraid. वो डर चुकी है, इसलिए जब कोई डरता है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता है. क्या हुआ है जंगल में ऐसा? What has happened in the forest that she is moving slowly and she is afraid. Second thing, its ears pricked to pick some sound somewhere. Its ears means the bulbul's ears जो है वो उसने खड़ा किए थे अपने कान. Why? To pick some sound, ताकि वो उस आवाज को अच्छी तरह से सुन सके. Somewhere, जो जंगल में किसी जगह से आ रही थी. Moving slowly, afraid, its ears pricked to pick some sound somewhere. With the grain in its beak, और उसके जो चोंच में थी एक grain था, दाना था. It hastens to the nest. It hastens to the nest. ये जल्द, hasten means तेज तेज, जल्दी जल्दी, quickly. It quickly turns towards the nest, towards its nest. उसके अपने वो जो nest था, घर था, उसकी तरफ वो तेज तेज जा रही थी. It is twittering fledglings. Now, what is twittering fledglings? It's written on this your textbook. The page number is 76, 70. Fledglings means the young birds with new flight feathers. क्योंकि जब आपने देखा होगा जब छोटा सारे बाइच पे ना कुछ जब वैसा का वुडित कि आपको पता ही है वो कितना शोर करता है. उसके जो बच्चे हैं वो यंग है and they don't know how to fly. उनको पता ही नहीं है कैसे उड़ना है. They do not know. So its twittering fledglings do not know the forest is in the throes of fire. In the throes means that there is some difficulty, there is some problem, there is some fear, there is some painful situation in the forest. There is some painful situation in the forest. They continue chirping. यानी जब किसी जगह कोई प्रॉब्लम होती है तो सब चुप करके बैठते हैं ताकि हमें कोई नोटिस न करे. लेकिन ये छोटे बच्चे हैं, इनको क्या पता है कि जंगल में क्या हो रहा है. ये सिर्फ माँ जानती है जंगल में कोई मुश्किल होने वाली है. But they continue chirping. The bulbul trembles, moves with its head raised, moves with its head raised, alert all ears. बुलबुल जो है वो जब चलती है लेकिन अपने जो अपना जो सर है उसको खड़ा किए हुए है ताकि वो सुन सके कहीं से कोई दुश्वारी तो नहीं है, कहीं कोई दुश्मन तो बैठा नहीं है. Alert all ears. That means that उसके कान जो है खड़े हैं कि कहाँ से कोई आवाज, कहाँ से आवाजें आ रही है. सेकंड स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन अब हम आपको बताएंगे. In these lines, the speaker of the poem describes the feelings, ध्यान रखना, very important stanza, emotions and concerns of the bulbul as mother. Here the bulbul has been depicted as a mother. यहाँ पे मदर उसको दिखाया गया कि माँ को कितनी पेन होती है जब कोई दुश्वारी आती है, उसके बच्चे जो है वो खुद कुछ नहीं कर सकते हैं. तो यहाँ पे फीलिंग्स को, इमोशंस को और माँ का जो कंसर्न होता है अपने बच्चों के मुतालिक उसको यहाँ पे दिखाया गया है. सो एन इमेज गेट्स क्रिएटेड इन आवर माइंड. व्हेन शी हर्ड सम हॉरिफाइंग साउंड्स, क्योंकि उसने कुछ ऐसी आवाज़ें, डरावनी आवाज़ें सुनी जंगल में. शी मूव्स क्विकली टुवर्ड्स द नेस्ट, वो जल्दी से अपने नेस्ट की तरफ जाती है.
fear grips both her wings and legs. लेकिन जो डर होता है उस डर ने वो हावी हो चुका है, यानी उसका डर हावी हो चुका है उसके विंग्स पर और लेग्स पर. दैट मीन्स ही इज नॉट एबल टू the bulbul is not able to walk, or the bulbul is not able to fly. With a grain in her beak, उसके चोंच में दाना है, head raised, सर तो ऊपर उठाया है, and ears alert, she flies fast to reach her nest with a hope to protect her twittering fledglings. वो तेज तेज उड़ने की कोशिश करती है ताकि जो उसके घोंसले में छोटे 4 जो फ्लेजलिंग्स है, जो अभी नए हैं, यंग वंस है, जिनको पता भी नहीं है अगर जंगल में कोई आग लग गई या जंगल में कोई दुश्मन आ गया, उनको ये भी पता नहीं है उड़ना कैसा है. who are continuously chirping as they do not know about the impending danger. जो कि बिल्कुल चहचहाते रहते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है ये जो जंगल है दैट इज इन डेंजर. द बुलबुल है सेंस्ड. कौन सा डेंजर? जो बुलबुल को दिखाई दे रहा है कि जंगल में कोई बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है. सो इन दीज लाइन्स द पोएट वांट्स टू कम्युनिकेट दैट. तो इस लाइन में जो हमने अभी पढ़े, मूविंग स्लोली एफ्टर इट्स ईयर्स प्रिक्ड टू पिक सम साउंड समवेयर, ये जो स्टेंजा हमने पढ़ा, इसमें जो पोएट है वो हमें क्या कम्युनिकेट करना चाहता है क्या? सो मैनी हार्डशिप्स इन हर लाइफ. माँ की जिंदगी में कितनी भी मुश्किलात हों, a mother is always concerned and worried about the well-being of her children. लेकिन उसके जहन में उसको एक ही कंसर्न होता है और वो सिर्फ एक चीज़ के लिए शी इज वरीड. मदर किस चीज़ के लिए वरीड रहती है? कि उसके बच्चे हमेशा अच्छे रहे, उसके बच्चे हमेशा खुश रहे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट message in this stanza, that the poet wants to communicate that despite so many hardships in her life, a mother is always concerned and worried about the well-being of her children. कितने भी मुश्किलात माँ को हो, लेकिन वो अपने बच्चों पर इसका साया भी पड़ने नहीं देता है. Now we have another stanza number 3. Suddenly there is a sound of wheels. Suddenly there is a sound of wheels. The sound of dry leaves crackling. The sound rising and subsiding. The bulbul hides itself in the bushes. एक पार्ट इसका है, फिर से मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनिए. Suddenly there is a sound of wheels. The sound of dry leaves crackling. The sound rising and subsiding. The bulbul hides itself in the bushes. It sees a bullock cart laden with goods. It sees a bullock cart laden with goods. Bullocks moving by themselves, heads down. The driver asleep, snoring, eyes covered with the end of his turban. The third stanza is now in the third stanza we will know that what is the fear in the bulbul's heart. Why the bulbul is so afraid? Why the bulbul is so is in throes of fear? Why? In these lines, the speaker of the poem describes the moving of bullock cart in the silent forest. जो उसने वो साउंड सुनी थी, आवाज सुनी थी, उसने एक बुलक कार्ट को देखा है चलते हुए. और आपको पता है बुलक कार्ट किसको बोलते हैं? यस, मैंने आपको यहाँ पे पहले ही दिखाया था दैट बुलक कार्ट. शायद वो इसमें नहीं है. ये देख लीजिए, ये बुलक कार्ट है. बैलगाड़ी. वेरी गुड. बैलगाड़ी जिसको उर्दू में कहते हैं. बुलक कार्ट इज अ कार्ट ड्रिवन बाय बुलक्स. सिंपल. बुलक को बोलते हैं ना बुल्स को, जिसको बेल खींचते थे. ऐसी गाड़ी जिसको बेल खींचते थे. तो यहाँ पे जो इसकी एक्सप्लेनेशन है, that in these lines the speaker of the poem describes the moving of bullock carts in the silent forest. फॉरेस्ट बिल्कुल साइलेंट होता है, लेकिन वहाँ पे उसको आवाज़ आती है. जो आवाज़ वो सुनता है, जो हमने पहली स्टेंजा में पढ़ा, वो आवाज़ होती है बुलक कार्ट्स की, यानी बुलक कार्ट की. यानी कोई रेड़ा चलता है इस जंगल में,
अब उसको परेशानी क्या है, अगर वो चलता है चलने दो, लेकिन देखो क्या है, एंड इट्स व्हील्स क्रशिंग द ड्राई लीव्स। और जो आवाज आ रही थी, जो उसके व्हील्स होते हैं, पहिए जब वो जंगल से चलता था ब्लैक कार्ड, तो तमन ड्राई लीव्स तक पता ये हक पन पे पकान तथ आवाज गसान, creating fearful sounds. अम सतन आवाज नेरा which the sound was very fearful. Rising and subsiding, ये आवाज वारिया गसान, पत वार 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 सबसाइड गो, थोड़ा कम गसान, यानी ये नेरान। मिसाल सपोज आप किसी जगह बैठे हो, जब गाड़ी आएगी ना, कोई गाड़ी आफ की तरफ, तो आवाज गस राइज, यानी और यूता यह दूर आस तुम बूझो कम, यूता यूता नजदीक वात तूता गस आवाज ज्यादा राइज, मगर ये तुम नश बे रचा रचा दूर गस आवाज गस बे अत वन सबसाइड गस। हियरिंग द साउंड्स, जब ये आवाजें बुलबुल ने सुनी, द बुलबुल हाइड्स हरसेल्फ इन द बुशेस, बुलबुल अपने आप को छुपाती है बुशेस के पीछे। शी सीज ए बुलक, उसमें क्या वो देखती है, उस देखो डरावनी क्या बात है। शी सीज ए बुलक, उसने एक रेडे को देखा, एक गाड़ी को देखा, एक बैलगाड़ी को देखा, लेडन विद गुड्स, उसमें बहुत सारा सामान भरा हुआ था। इट्स बीइंग ड्रिवन बाय अ केयरलेस ड्राइवर, लेकिन इसको जो चलाने वाला ड्राइवर था, ही वाज वेरी केयरलेस, उसको यहाँ पे केयरलेस कहा गया है ड्राइवर को। दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारी पोइम का टाइटल है, दैट्स कॉल्ड ड्राइवर। यहाँ पे इसका मतलब है ये जो ड्राइवर था, इट वाज वेरी केयरलेस। क्यों? हु इज स्लीपिंग एंड स्नोरिंग, जो इस रेडे पे सोया हुआ है और खराटे ले रहा है, स्नोरिंग ख्रोक्शना खसन, दैट्स खराटे ले रहा था। हिज आइज आर कवर्ड विद द एंड ऑफ हिज टर्बन, और जो उसकी आंखें हैं, उसने अपने टर्बन को इस दस्तार सह त्रोमुत अचन पे का आम पत कुन त्रावान कुन पे कलस पे टूप सह वालान, तुम वुचमुत गर बुढ़ कह सह वालान अचन पे ताकि लाइट वाइट पे कह अचन निंदर ही आराम सान। तो अम हसा वोजमुत बुन, अम पे क्या गो, प्रॉब्लम क्या बुझ वन, प्रॉब्लम लास्ट स्टेंजास मज लिखित। बुलबुल क्या इमेजिन कर, एक्चुअली इट्स ऑल इमेजिनेशन। बुलबुल कर, व्हाट इफ द कॉट स्टम्बल्स, स्टम्बल मीन्स गो ओवरटर्न, अगर ये उल्ट गो ये कॉट, क्या यम ब्लक्स तम कल बोन कुन त्रत लमान अत रेडस, तिमन पता अस कोत गसुन, क्या हु शंगिट, द ड्राइवर ऑफ द कॉट इज एज लीव, ही इज स्नोरिंग, द कॉट ड्राइवर्स हुक्का ओवरटर्न्स। तुम वो यमन त्रेशवनी लाइन्स स्टेंजा लास्टस पे त्र एक्सक्लेमेशन, दैट मीन्स यथ मज हाई कह चीज किन चीज हाई इंटेंसिटी आ। व्हाट इफ द कॉट स्टम्बल्स, क्या होगा अगर ओवरटर्न हुआ, उल्टा हो गया ये कॉट। एक दूसरी बात, द कॉट ड्राइवर्स हुक्का ओवरटर्न्स, और उसका जो हुक्का है, क्योंकि इसका मतलब है उस रेडे में उसके साथ एक हुक्का है, वन जिजीर कशर पे तथ तिंगुल त्रत, यानी उस जिजीर चवान अम वो अमिस पे जिजीर को नजर हुक्का पे चवान ये चवान कशर जिजीर, बिल्कुल मानतो तुम फिलहाल सुई इमेज करो तुम सुई क्रिएट। दपा अगर हसा ये गो दोल, यानी हुक्का त आय ओवरटर्न, अत तिंगुल त्रत, द फॉरेस्ट कैचेस फायर, जंगल में तो आग लग जाएगी। It imagines the forest on fire, wishes to run towards its nest. It here means the bulbul. बुलबुल इमेजिन करता है इसको आग लग गई जंगल को, क्योंकि केयरलेसनेस ऑफ, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ दिस ड्राइवर, जो नहीं चलाता है इस कार्ट को, क्योंकि वो सोया हुआ है। बुलक्स खुद ले जा रहे हैं कार्ट को, किसी जगह ये उल्टा हो जाएगा। विशेस टू रन टूवर्ड्स इट्स नेस्ट, इसलिए वो चाहती है वो जल्दी से अपनी नेस्ट में पहुंच जाए। क्यों? टू सेव इट्स यंग वंस, क्योंकि उसको वहां पे छोटे 4 बच्चे थे, उनको बचाने के लिए। लेकिन ध्यान रखो, उसका डर उसकी जुर्रत पे हावी हो गया, उसका डर उसकी जुर्रत पे हावी हो गया, बट कैन नॉट लिफ्ट इट्स लेग्स आउट ऑफ फियर, लेकिन वो अपनी टांग को ही नहीं उठा सकी। वाई? बिकॉज ऑफ फियर। उसके दिल में जो डर था कि अगर जंगल में आग लग गई, मेरे बच्चे कहाँ जाए, क्योंकि उनको उड़ना भी नहीं आता है। नाउ एक्सप्लेनेशन। इन दीज लाइन्स द स्पीकर ऑफ द पोएम
The speaker of the poem describes various premonitions the bulbul has after seeing the bullock cart being driven by a negligent driver. उसके जहन में बो प्रिमोनिशंस मीन्स बुरे ख्याल यथ वन जब किसी कोई बोलता है क्या ये सनान ना कुन चीज़ का इमेज क्रिएट गसान पच अंदर वथान बुरे जो ख्यालात उठते हैं दैट दोज आर कॉल्ड प्रिमोशन. अब प्रिमोनिशंस यहाँ पे बुलबुल को क्या उठती है कब उठती है आफ्टर सीइंग द बुलक कार्ट बीइंग ड्रिवन बाय ए नेग्लिजेंट ड्राइवर. नेग्लिजेंट मीन जिसको जो केयरलेस हो जिसने बुलक कार्ट को अपने ही बलबोते पे यानी उनके ही यानी बुलक्स के बलबोते पे छोड़ दिया है एंड ही इज नेग्लिजेंट ही इज केयरलेस उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है लापरवाह जिसको हम कहेंगे. लाइक व्हाट वुड हैपन क्या हो सकता है इफ द कार्ट स्टम्बल्स अगर जो कार्ट जो है वो उल्टा हो जाएगा उसके साथ अगर एक्सीडेंट पेश आया. इफ द ड्राइवर्स हुका ओवरटर्न्स उस कार्ट में ड्राइवर का हुका भी है तो अगर वो भी उल्टा हुआ यानी वो भी गिर गई एंड द फॉरेस्ट कैचेस फायर. फॉरेस्ट कैचेस फायर जंगल में आग लग सकती है. द स्पीकर देन डिस्क्राइब्स अब यहाँ पे इसमें स्पीकर जो है वो डिस्क्राइब करता है हाउ बुलबुल इमेजिन्स द फॉरेस्ट ऑन फायर एंड हाउ शी विशेस टू रन एंड रश टुवर्ड्स हर नेस्ट टू सेव हर यंग वंस. वो यहाँ पे डिस्क्राइब करता है कि बुलबुल जो है वो कैसे इमेजिन करता है कि फॉरेस्ट में जो है आग लगती है और वो जल्दी से चाहती है दौड़ना और अपने नेस्ट की तरफ जाना. बट शी कैन नॉट लिफ्ट हर लेग्स आउट ऑफ फियर. वो नहीं उठा सकती है अपने उन निन्ने से टांगों को. क्यों? आउट ऑफ फियर बिकॉज देयर इज फियर इन इट्स माइंड इन इट्स हार्ट in its mind. She is concerned about her own life too. तो यहाँ पे दोनों because she is also concerned about her own life. जब वो अपने आप को बचाएगी तब जाके वो छोटे बच्चों को बचा पाएगी. That's why she is concerned about her own life also. So there in this last stanza we see the tussle between the love for herself and love for her children. उसके बच्चों के मुतलिक जो उसका प्यार होता है और अपने मुतलिक जो प्यार होता है यहाँ पे एक टसल चलता है. नाउ मदर्स लव फॉर हर चिल्ड्रन एंड फॉर हर ओन सेल्फ. ये इंपॉर्टेंट है इसमें जो हमने पढ़ा. द मेन थीम ऑफ द पोएम ध्यान रखना इस पोएम का थीम क्या है. कार्ट ड्राइवर इज लव ए मदर हैज फॉर हर चिल्ड्रन. मेन थीम ऑफ द पोएम हियर इज दैट द लव a mother has for her children. The poem clearly depicts how a bulbul, a mother, worries when she senses and sees something fearful happening in the forest. She wishes to run towards her nest to save her young ones. However, when she can do nothing as the forest is on fire, she hides behind bushes to save her own self. Just a minute. यहाँ पे दो चीजें हमें बताई गई है. एक है मदर का लव यहाँ पे कहा गया है बिकॉज उसको जो सबसे पहले जो है अपने आप को बचाना है. फॉरगेटिंग एवरीथिंग एल्स. ओके उसको अब कुछ याद नहीं रहता है क्योंकि उसको अपने आप को पहले बचाना है. नाउ द केयरलेसनेस. सेकंड इज केयरलेसनेस. द पॉइंट ऑल्सो हाईलाइट्स द केयरलेसनेस ऑफ द कार्ट ड्राइवर. यहाँ पे पॉइंट जो है ना इसमें कार्ट ड्राइवर की केयरलेसनेस को भी हाईलाइट करता है. हुज बुलक कार्ट इज मूविंग इन द फॉरेस्ट. जिसका जो रेडा है बेल जिसकी बैलगाड़ी खुद चलती है. while he is asleep and snoring, फर्स्ट हिज ओन लाइफ वॉज इन डेंजर. सबसे पहले उसको आप खुद खतरा था उस ड्राइवर को. एंड सेकंड द हुका कुड टर्न द इंटायर फॉरेस्ट एंड द क्रिएचर्स डेवलिंग देयर.
तो वहाँ पे जो हुक्का था वो बर्न कर सकता था फॉरेस्ट को, उसमें आग लगा सकता था, और वो जितने भी क्रिएचर्स वहाँ पे बसते थे उनको आग लग सकती थी। Highlighting the carelessness of the car driver, the poet wants to communicate that we must always drive carefully. इसका मतलब है poet हमें चाहता है कि जब भी आप ड्राइव करें आप केयरफुली ड्राइव करें. We must not put our and others lives in danger by being negligent. हमें अपनी और दूसरों की जिंदगी को जो है वो खतरे में नहीं डालनी चाहिए अगर हम नेग्लिजेंट रहे, अगर हमारी नेग्लिजेंस की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से दूसरों को भी नुकसान हो सकता। तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा कि जो मदर का लव है वो थीम है इसमें अपने बच्चों के लिए और अपने लिए। सेकंड, इसमें जो इम्पोर्टेंट बताया गया था वो था केयरलेसनेस, इसमें जो केयरलेसनेस बताया गया है। अब जो वो कौन सी इमेजेस है जिनसे फियर एंड साइलेंस क्रिएट हो रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि हमने इस पोएम में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे इमेजेस क्रिएट हुए। फर्स्ट इज फियरफुल साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट। जब हमने एक वर्ड पढ़ा फियरफुल साइलेंस ऑफ द फॉरेस्ट, ये एक इमेज क्रिएट हो रही है हमारे जहनों में। हम खुद जो है एक इमेज अपने जहन में हमारे बन रही है कि किस तरह का माहौल, किस तरह का एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर उस जंगल में होगा जहाँ पे फियरफुल साइलेंस हो, कोई नहीं हो, अकेला हो कोई। ears pricked to pick some sound somewhere, बिल्कुल कान खड़ा कर में, यहाँ पे एक इमेज बनती है हमारी भी, किस तरह से कोई कान खड़ा करता है कोई आवाज सुनने के लिए। थ्रोज ऑफ फियर, थ्रोज ऑफ फियर मीन्स जो डर का जो माहौल वहाँ पे है, एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट है वहाँ पे, वो एक्सपीरियंस करना। हुक्का ओवर टर्न्स आता है कि इमेज ये बनित कि घर जुजीर कुछ सात दोल पे दोल वसित एंड फॉरेस्ट ऑन फायर या वुचम ये इमेज आग लगती है जंगल में। कैन नॉट लिफ्ट इट्स लेग्स, यह कुछ सात वुचमुत खुदा रखिए अचानक कह ठी मिसाल हून ना वोई करान यम सात पकान तुम वो जंगन चलान जूई नीर, बिल्कुल इस बुलबुल के साथ जो है ये इमेज क्रिएट हुई है। नाउ असेसमेंट, okay, assessment is for you, so you can unmute yourselves and I will ask you the questions, but please मैं क्वेश्चन यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे आया है क्वेश्चन, आप एक चीज कीजिए, आप बेटा जिसको मैं बोलूंगा वही आंसर देगा, बस आपको रेज हैंड करना है। हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम कॉड ड्राइवर? ओके, you can raise your hands, 2-3 participants raise hands, very good। लेकिन जिन्होंने रेज हैंड किया है उनमें हाँ जासिया नजीर, हु इज द ऑथर ऑफ द, वेरी गुड Padma Sachdev. वेरी गुड, पद्मा सचदेव, एंड यू ज्वाइंड द क्लास वेरी लेट, पहले ही मैंने बोला है सुबह सवेरे उठो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू बारिक इलाही, you can count your hands, name the translator of the poem called driver, barik ilahi, who is the translator of the called driver, translator, because this Dr. poem Karan Singh. in which language? This poem Dr. is Karan Singh. Dogri language. Very, who has translated it into English language? Dr. Karan Singh. Very good. Third question is to Uzma Badr. Okay, Uzma, yes, the question is like this. Third question, why is the poem named Cod Driver? Could you tell me, Uzma? because वो जो इसका कार्ड जो कार्ड का वो ड्राइवर था वो केयरलेसनेस था। So we can say here the poet has described the cod driver as a careless person. Okay, and due to his carelessness, the bulbul is very afraid. All the creatures are in danger. All the creatures in the forest are in danger. Okay. Yes, sir. Okay, down your hand, Barik, down your, okay, down your hand. Now the question is to Muskan Mushtaq. Muskan Mushtaq, question number 4. Okay, now the question number 4 is on screen. Have you ever feared anything either in the reality or in imagination? अब आपको ये question, this is personal question to you. क्या कभी आपको ऐसे लगा है जैसे अब आपको डर महसूस हो रहा है, चाहे तो इमेजिन छा कोरमत या रियलिटी मन छे ये चीज जहां गुमत, मतलब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है सही
मतलब फिर जो बुलबुल के साथ हुआ है ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? Yes. जिसके साथ हुआ है वो रेज हैंड करे। नहीं सर नहीं। जिसके साथ हुआ है वो रेज हैंड करे, किसी के साथ नहीं। नो सर। ये तो बादशाह लकड़ ये प्रॉब्लम ये डिस्टर्बेंस ना हकीकत में है हमारे साथ ऐसी